السلام علیکم تمام دوستوں کو میرے YouTube چینل پر خوش آمدید۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ مسٹر ڈے دوسرا اور آخری حصہ۔ مسٹر ڈے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اور بولا، شیطان نے شرط رکھی کہ جب اس کی یعنی میری ماں کی اولاد 15 سال کی ہو جائے گی تو وہ اپنی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کی دونوں آنکھیں نکال کر شیطان کو سونپ دے گی۔ میری ماں اس وقت اولاد کی چاہت میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے بلا جھجک شیطان کی یہ شرط مان لی۔ پھر میں پیدا ہوا اور جوں جوں بڑھتا گیا میری ماں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پریشان ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب میں 15 سال کا ہونے والا تھا تو ماں نے مجھے بتایا کہ شیطان اندھیروں کا حکمران ہے، وہ اندھیرے پر حکومت کرتا ہے۔ اسے روشنی اور روشن کرداروں سے سخت نفرت ہے، وہ کبھی بھی روشنی میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ اندھیروں میں رہتا ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب میں 15 سال کا ہو جاؤں گا تو شیطان میری آنکھیں لینے آ جائے گا اور وہ اس وقت تک میرا پیچھا کرے گا جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتا۔ اس لیے مجھے پوری زندگی روشنیوں میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ اگر مجھ پر اندھیرے کی پرچھائیاں بھی پڑ گئی تو میں شاید زندہ نہ بچ سکوں۔ اور پھر ایک دن جب میں صبح اٹھا تو میری پیاری ماں پنکھے سے جھول رہی تھی۔ شاید وہ اس گناہ کے احساس کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی جو کہ اس نے ڈیڈ کو قتل کرنے کی صورت میں کیا تھا۔ ماں تو مر گئی، لیکن اس کے مر جانے کے بعد میں نے روشنیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس لیے کہ شیطان کے ہاتھ مجھ تک نہ پہنچیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچنے والے کو قسمت کا ساتھ 100 دن کے لیے چاہیے، جبکہ مارنے والے کو 1 دن کے لیے درکار ہوتا ہے۔ میں روشنیوں میں محفوظ ہوں، لیکن مجھے پھر بھی ہر وقت شیطان کا خوف گھیرے رکھتا ہے۔ مسٹر ڈے یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ کرسٹن اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا آپ کی ماں نے آپ کا نام مسٹر ڈے رکھا تھا؟ نہیں، ماں نے میرا نام پیٹر کونسل رکھا تھا۔ آپ مجھے پیٹر کونسل بلا سکتی ہیں، کیونکہ میں آج کل کے نوجوانوں کی طرح رات کو باہر نکل کر موج مستی نہیں کرتا، اس لیے وہ سب مجھے مسٹر ڈے بلاتے ہیں۔ مسٹر ڈے یعنی پیٹر نے کہا۔ تو کیا میں آپ کو پیٹر بول سکتی ہوں؟ کرسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بشرط یہ کہ آپ مجھے دوست بنانا پسند کریں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی آدمی ایسا بے وقوف ہوگا جو یہ جاننے کے باوجود بھی اس آدمی سے دوستی کرے جو ہر وقت شیطان کے نشانے پر ہے۔ پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ آپ نے مجھے اپنا راز بتایا تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی مدد کروں۔ کرسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہیں۔ پیٹر نے کہا تو کرسٹن مسکرا پڑی۔ کچھ دیر وہاں مزید رکنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ دوسرے دن صبح 10 بجے کرسٹن کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سیل پر رافیل کی کال آ رہی تھی۔ کرسٹن نے بستر پر لیٹے لیٹے بند آنکھوں سے ہیلو کہا۔ ارے تم ابھی تک سو رہی ہو؟ دوسری طرف چیختی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ ہاں تو کون سا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا؟ کرسٹن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اپنے گھر میں مزے سے سو رہی ہو اور یہاں باس نے پورے آفس کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ صبح سے ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں، کرسٹن کہاں ہے؟
और वो अभी तक क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह। लगता है बॉस की फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है। सुबह से ही बहुत गुस्से में है। इससे पहले का गुस्सा 7वें से 8वें आसमान पर पहुंचे। तुम फौरन ऑफिस पहुंचो, राफेल ने कहा। लेकिन आसमान तो सिर्फ 7 ही होते हैं, क्रिस्टन ने आंखें मलते हुए कहा। क्रिस्टन प्लीज मजाक मत करो और 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो, राफेल ने कहा और साथ ही कॉल काट दी, जबकि क्रिस्टन बुरे बुरे मुंह बनाती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ओह क्रिस्टी, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हें 10 मिनट में आने का कहा था, जबकि तुमने पूरा 1 घंटा लगा दिया, राफेल ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, वो मैं जरा ब्यूटी पार्लर चली गई थी, क्रिस्टन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता भी है बॉस तुम्हारी वजह से इतने गुस्से में है। हाँ मुझे पता है बॉस इस वक्त कितने गुस्से में है, इसलिए मैंने इनके गुस्से को प्यार में बदलने की हल्की सी कोशिश की है, क्रिस्टन ने राफेल को आंख मारते हुए कहा। तो वो ना समझने वाले अंदाज में इसे देखने लगा और फिर वो सर झटक के इसके पीछे बॉस के कमरे में दाखिल हुआ। मे आई कम इन सर? क्रिस्टन ने एक अदा से कहा। यस। बदसूरत गंजे और अधेड़ उम्र बॉस ने सख्त लहजे में कहा। मैंने सुना है आप सुबह से मुसलसल मुझे याद कर रहे थे, क्रिस्टन ने सामने किसी कुर्सी पर बैठते हुए नशीले लहजे में कहा, जबकि राफेल अभी तक यूं ही खड़ा था, लेकिन इशारा मिलते ही वो बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। हाँ किया तो था। बॉस ने फाइल से नजरें हटाकर क्रिस्टन को देखा तो इसके अल्फाज इसके हलक में अटक गए। बॉस, मैंने आपके लिए एक कहानी ढूंढ के लाई हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, क्रिस्टन ने पर्स में से चंद सफ़हात निकालकर बॉस की तरफ जरूरत से ज्यादा झुकते हुए बढ़ा दिए। तो बॉस ने सफा थाम लिया और एक नजर पड़ने के बाद कहा, हाँ ठीक है, तुमने कहानी ढूंढी है तो जरूर दिलचस्प ही होगी। अभी से इस पर काम शुरू कर दो और आज शाम 8 बजे इसे हर हाल में ऑनर करो, बॉस ने अपने लहजे की लर्जिश पर काबू पाते हुए कहा। थैंक यू सर, क्रिस्टन ने बालों को एक अदा से झटक कर कहा और फिर बाहर निकल गई। कमाल कर दिया, तुमने तो बॉस को 2 मिनट में राम कर लिया, राफेल ने हैरत और खुशी से कहा। लेकिन मैंने कहानी देखी है, मुझे तो वो एक नफ्सियाती मरीज की कहानी लगती है, राफेल ने कहा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस आदमी की कहानी हकीकत महसूस हो रही है। खैर ये जरूरी नहीं कि कहानी सच्ची हो या झूठी, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि वो आदमी मुसलसल 10 सालों से रोशनी में रह रहा है। सोचो इसे रोशनी में नींद कैसे आती होगी। वो कोई कंबल ओढ़कर नहीं सोता, क्योंकि वो कंबल ओढ़कर अपने आप को अंधेरे में नहीं डुबोना चाहता। ये बातें देखने वालों के लिए कितनी दिलचस्प होंगी, तुम सोच भी नहीं सकते, क्रिस्टन ने कहा। तो राफेल ने बेअख्तियार सर हिला दिया। क्रिस्टन इस वक्त पीटर यानी मिस्टर डे के फ्लैट में मौजूद थी और वो मुसलसल 1 घंटे से पीटर को लाइव टेलीकास्ट शो के लिए ज़हनी तौर पर आमादा कर रही थी और पीटर इसके सामने चुपचाप बैठा मुसलसल इसे सुनते जा रहा था। आखिरकार वो बोला, क्रिस्टन तुम जानती हो मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि मैंने आज तक अपने अलावा किसी की जात पर भरोसा नहीं किया, और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस शो में मेहमान बनूं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी और बदले में मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ एक शो ही करना है, और मैं ये शो जरूर करूंगा। मुझे खुशी होगी कि मैं जिंदगी में किसी इंसान के काम आया हूँ, वरना मेरी जात है क्या, एक चलती फिरती लाश, पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्रिस्टन को यूं महसूस हुआ कि पीटर की मुस्कुराहट में हजारों हसरतें और दुख शामिल हैं।
नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्रिस्टन को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसकी आंखों में देखकर ये बात कर सके, लिहाजा इसने सर झुका लिया, जबकि पीटर इसे खाली नजरों से देखने लगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपकी होस्ट आपकी खिदमत में पेश है। इस शहर की हैरत अंगेज कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज तक आपने कभी मूवीज में देखी होगी और ना किसी रसाले में पढ़ी होगी। और इस कहानी के जीते जागते किरदार मिस्टर पीटर उर्फ मिस्टर डे इस वक्त हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं। हेलो मिस्टर डे, सॉरी मिस्टर पीटर, कैसे हैं आप? राफेल ने लाइव टेलीकास्ट में ड्रामाई अंदाज में पीटर को मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, पीटर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? क्रिस्टन ने साथ वाले कमरे में मौजूद बास से पूछा। हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बास ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने पीटर से किए गए वादे के मुताबिक वहां इमरजेंसी फ्लैश लाइट्स लगवाई हैं? क्रिस्टन ने दोनों कमरों के दरमियान बनी कांच की मजबूत दीवार के पार पीटर और राफेल को सवालों जवाब करते देखते हुए कहा। हाँ, लगा दी गई हैं, बास ने लापरवाही से कहा तो क्रिस्टन बेअख्तियार होंठ काटने लगी। हाँ तो मिस्टर पीटर, आप हमें ये बताएं कि आपको इतनी तेज रोशनियों में नींद कैसे आ जाती है? राफेल ने झटकेदार अंदाज में पूछा। सीधी सी बात है कि आप खुद को जिस माहौल का आदी कर लें, आपको इसी माहौल में नींद आ जाएगी। और वैसे भी आपने सुना होगा कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। पीटर ने संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, नींद तो वाकई आ जाती है, राफेल ने हंसते हुए कहा। तो अब वक्त हो चला है फोन कॉल्स सुनने का, और हम देखते हैं कि नाजरीन मिस्टर पीटर से क्या सवाल करते हैं। एक कॉल आ रही है, राफेल ने फोन सेट को देखते हुए कहा और साथ ही बटन प्रेस कर दिया। हाँ जी, कौन हैं आप और कहां से बोल रहे हैं? राफेल ने खुश इखलाकी से पूछा। मेरा नाम डेवल है और अपने पुराने दोस्त पीटर से बात करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से खनखनाती आवाज में कहा गया। जरूर, आपकी बात मिस्टर पीटर से कराएंगे, लीजिए करें बात। ये कहकर राफेल ने मिस्टर पीटर को इशारा किया कि वो बात करे। हेलो मिस्टर पीटर, कैसे हो? दूसरी तरफ से इसी अंदाज में कहा गया। मैं ठीक हूँ, आप बोलें, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? पीटर ने संजीदगी से कहा। मिस्टर पीटर, आपने कभी हॉरर स्टोरीज पढ़ी हैं? आमतौर पर स्टोरी के आखिर में भूत चुड़ैल हीरो के हाथों फना हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप इस कहानी के हीरो नहीं हैं, बल्कि विलन हैं। आप अब पूछेंगे कि हीरो कौन है, तो वो हीरो मैं हूं, जिससे तुम 10 साल से छुपते आ रहे हो। दूसरी तरफ से बात के आखिर में वर्रा कर कहा गया। ये कॉल काट दो, पीटर ने चीखते हुए कहा। हाँ काटता हूँ, राफेल ने घबराते हुए कहा। ओ मेरे खुदा, कॉल नहीं कट रही, राफेल ने कांपते हुए लहजे में कहा। इमरजेंसी लाइट ऑन करो, पीटर ने चीखते हुए कहा। मेरे दोस्त पीटर, अब बहुत देर हो गई है। टेलीफोन से आवाज आई और इसके साथ ही इस कमरे की लाइट ऑफ हो गई और टेलीविजन और कमरे की स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। इमरजेंसी लाइट ऑन करो, क्रिस्टन ने दूसरे कमरे से चिल्लाते हुए कहा। नहीं, इमरजेंसी लाइट ऑन करने की कोई जरूरत नहीं, बास ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? पीटर की जान खतरे में है, क्रिस्टन ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, लाइट मैंने खुद बंद करवाई है। तुम जरा कंप्यूटर पर तो देखो, हमारी TRD आसमान को छू रही है। इस वक्त 10 करोड़ नाजरीन हमें बराह रास्त देख रहे हैं। बास ने लालची अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ओ, वो फोन कॉल कौन कर रहा था? अगर आपको लगता है कि वो इंसान है तो आप दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान हैं। वैसे भी मैं भूत प्रीत पर यकीन नहीं करता, बास ने हंसते हुए कहा। लानत हो तुम पर,
کرسٹن نے کہا اور فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑی جہاں پیٹر اور رافیل موجود تھے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن ہو گئی تو کرسٹن نے دیکھا رافیل ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ پیٹر اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ کرسٹن تھوک نکلتے ہوئے پیٹر کے پاس بیٹھ گئی اور جیسے ہی اسے سیدھا کیا تو دیکھا کہ پیٹر کی دونوں آنکھیں غائب تھی اور آنکھوں کے گوڑوں میں سے خون نکل کر اس کے خوبصورت چہرے کو رنگین کر رہا تھا۔ پیٹر کا جسم بے جان تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی قاتل میں ہوں، کیونکہ یہ مجھ پر اعتبار کرنے کی وجہ سے مرا ہے، کرسٹن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی صدمے سے اس کا دماغ چکرانے لگا اور بے اختیار پیٹر کے پہلو میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اے زندگی، آ تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، ہر روز یہ صدمہ سہا نہیں جاتا۔